Hello students, a very warm welcome to the official YouTube channel of Pratham Test Prep. This is Mansi Miglani and today we are going to discuss the topic that intimidates you the most while attempting questions in the CAT exam, and that is tones. I have often seen students finding themselves in a fix whenever they come across such questions in the examinations, and they often tend to confuse themselves. So today we'll be looking at the various important tones that come in the examinations, and I promise you that after this session you will be a lot more confident in attempting these questions. But first we'll understand what are tones क्या होती हैं, and how do they manifest themselves in the speaker's voice or in the piece of writing of the writer. Okay, simplify this concept for you with this very simple example in a real life situation. And the mother who is annoyed at her son, and we'll see how she communicates. So I'll be reading out the sentences one by one, and I'll request you all to notice the change in my tone while reading out them. Okay? So the first sentence is, "Hey, I noticed some things today that bothered me. Let's talk about it calmly and find a solution together." Okay, now the second one. "I expect better from you. You need to take responsibility for your actions and make amends." Third, "Great job today. I'm really impressed with how well you handle everything." So यहाँ पे आपने देखा होगा कि there were three sentences and इनको बोलने का तरीका was different. The tone of my voice changed. तो इससे हमें क्या समझ में आया students? The tones are the attitudes or the emotions that are hidden behind the message that is being conveyed, or the way in which the message is being conveyed. Right? If you see at the first sentence, "Hey, I noticed some things today that bothered me. Let's talk about it calmly and find a solution together." Okay, so they have keywords. The selection of the keywords give us a hint that the mother is saying very calmly, right? So she is calm, but she is also assertive in her stance. Okay, she wants to find a solution, right? She is taking a stand that there are some things that bothers her, right? So she is calm and assertive. Okay, next we have, "I expect better from you. You need to take responsibility for your actions and make amends." तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है? That the mother is exercising control over her son. Yes, and she says that you need to take responsibility for your actions and make amends. So she wants a certain action to be taken also through that control. So here we can say that she is being authoritative, right? So यहाँ पर हमारी हो गई authoritative tone. Okay, next sentence, "Great job today. I'm really impressed with how well you handled everything." Now, obviously the mother is annoyed at her son. Okay, so she will not say this. तो इसका क्या मतलब है कि literal meaning और intended meaning is different. तो यहाँ पर अगर वो लिख रही है "Great job today", तो इसका मतलब क्या है? That she is taunting her child, right? So she is being sarcastic. ठीक है, तो sarcasm में क्या होता है? The literal meaning and the intended meaning both are different. Okay, but the motive is to mock somebody or ridicule somebody. Yes, तो यहाँ पे हमारी sarcastic tone बनती है. So through these sentences we saw कि एक ही सिचुएशन में एक ही बात को कहने के there can be many ways, और इन्हीं ways को and how the style that you adopt, इससे हमारी tones बनती हैं. Okay, so यहाँ तक सबको समझ में आया? Now we'll move forward. Now we'll see how to identify tones using some keywords. And इन keywords से हमारा क्या मतलब है कि हमारे sentences में कुछ ऐसे keywords होते हैं who point to some sentiment that is being referred. Okay, कि what is the sentiment of the author, ठीक है, राइटर का, स्पीकर का क्या सेंटिमेंट है, एंड देर आर सम वर्ड्स जो हमें इस डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं, राइट? सो वी हैव टू नोटिस एट सच कीवर्ड्स, एंड देर कैन ऑल्सो बी सम एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. ओके, तो एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, इन सब की हेल्प से हम अपनी टोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पर अगर आप वर्ड्स देखोगे, "द इनडिस्प्यूटेबल ट्रुथ", "unwavering action is the only acceptable response." Opposition to this fact is not only misguided
but morally wrong. So here the speaker is taking a strong stand, okay, and you can see that he has mentioned words like only, yes, and the indisputable truth. So यहाँ से हमें क्या पता चलता है that there is no room for discussion, okay, कि जो भी वो कह रहा है सिर्फ वही सच है, वही ट्रुथ है, और वो किसी और की अब नहीं सुनेगा. ऑल राइट, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है दैट ही इज़ बीइंग रिजिड, राइट, देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी. तो ये हमारी कौन सी टोन होती है? डॉगमैटिक टोन, ओके. सो डॉगमैटिक का क्या मतलब होता है? वन हु इज़ वेरी रिजिड इन हिज ओपिनियंस एंड बिलीव्स एंड इज़ नॉट रेडी टू लिसन टू समवन एल्स ओपिनियन, ओके. देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयर इज़ नो रूम फॉर डिस्कशन, ठीक है. सो यहाँ से हमें पता चलता है दैट इट्स अ डॉगमैटिक टोन. नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेट वेब ऑफ साइंटिफिक एविडेंस रिवील्स अ कंपेलिंग केस फॉर एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज विद अर्जेंसी, ओके. सो यहाँ पर अगर हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे जैसे मैंने अभी पढ़ा था, तो हमें क्या पता चलता है दैट ही इज़ गिविंग अ लेसन, ही इज़ प्रीचिंग समथिंग, ही और शी इज़ प्रीचिंग समथिंग, राइट. सो यहाँ पर हमें एक मॉरल लेसन दिया जा रहा है, okay. So we are being told to hold sustainable practices, okay. So why? Because it's a responsible choice and also a crucial step towards safeguarding the planet for future generations. तो हमें future generations के लिए planet को बचा के रखना है, right. So हमें यहाँ पर एक moral responsibility दी जा रही है that we have to be careful, okay. तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमारी टोन क्या है? हमारी टोन है डायडैक्टिक, राइट. हमें एक मॉरल प्रीचिंग दी जा रही है, हमें एक लेसन दिया जा रहा है, राइट. वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. सो दिस इज़ आवर डायडैक्टिक टोन, ठीक है, एंड दिस इज़ आवर डॉगमैटिक टोन, ठीक है. यस. Okay students, so there can be as many as 100 plus tones in English language, and here we have curated a list tailor-made for CAT exam purpose. These tones are all important, so I'll highly recommend you all to take the screenshot of this, and we'll be discussing the major ones following this table, okay. Okay guys, so let's move towards the examples. First is, they say laughter is the best medicine. Forget insurance. I am investing in comedy clubs. So यहाँ पर क्या टोन हो सकती है? तो यहाँ पर writer is being very optimistic, yes, and also he is saying कि he is ready to take a chance, ठीक है, and he has hopes for the future, okay. सो ये हमारी टोन बनेगी सैंग्विन. सैंग्विन का मतलब क्या होता है? दैट व्हेन वट एवर डिफ़िकल्टीज़ वी आर फेसिंग, वी आर ऑप्टिमिस्टिक एंड वी आर होपफुल फॉर द फ्यूचर दैट वट एवर विल हैपन फॉर द गुड, ठीक है. सो ही सेज़ कि ठीक है, मुझे इतना इंश्योरेंस वगैरह में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कॉमेडी क्लब्स में इन्वेस्ट करूँगा, मैं ठीक रहूँगी, एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर मी इन द फ्यूचर. सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है. सब कुछ अच्छा होना है. सो हेयर my tone is sanguine, okay. Now let's move towards the another tone, that is, let's read out, this is a disaster, this is defeat, I am here watching an enormous defeat, worse than Waterloo, we are all lost, I'll never see mother or any of my family again, I am going to die. So यहाँ पे हम क्या पता चल रहा है कि here the writer is being negative. बहुत ही इसको पढ़ते ही बहुत सी नेगेटिविटी सी आ रही है, राइट. वो मतलब बिल्कुल हार मान चुका है, देर हर जगह बस डिफीट है, ठीक है, एंड उसको आगे वो बढ़ाते चला जा रहा है. देर इज़ इनॉर्मस डिफीट, वर्स दैन वाटरलू. सो उसने अपनी डिफीट को वाटरलू से कंपेयर किया, राइट. सो यू कैन सी द एनालॉजी दैट इज़ बीइंग ड्रॉन हियर. नेक्स्ट, वी आर ऑल लॉस्ट, आई विल नेवर सी मदर और एनी ऑफ माई फैमिली अगेन, आई एम गोइंग टू डाई. सो ऑब्वियसली ही इज़ वेरी नेगेटिव, ही इज़ बीइंग पेसिमिस्टिक, ठीक है. तो हमारी टोन क्या होगी ऑटोमेटिकली? पेसिमिस्टिक, यस. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर स्लाइड. लव इज ऑफन पोर्ट्रेड एज अ ब्यूटिफुल फेरी टेल. In reality, it's complicated script where actors change roles without warning. Okay, so यहाँ पर he is or she is being
क्वाइट नेगेटिव अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन, ठीक है, कि लव को ब्यूटिफुली हम पोर्ट्रे तो करते हैं दैट इट्स अ फेरी टेल, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ होता नहीं है. इट्स ओनली अ कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट वेयर एक्टर्स चेंज रोल्स विदाउट वार्निंग. तो कभी भी कुछ भी हो सकता है. इट्स अ डाइसी सिचुएशन. कुछ इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस कि एवरीथिंग बहुत ही फेरी एंड सब होगा, राइट. तो ही इज़ बीइंग नेगेटिव बट ओनली टूवर्ड्स अ सिचुएशन, टूवर्ड्स लव. तो हमारे यहाँ टोन क्या हो सकती है? सिनिकल. तो सिनिकल टोन का क्या मतलब हो सकता है? सिनिकल टोन होता है व्हेन देयर इज़ नो ट्रस्ट, ठीक है. किसी चीज़ पे हमें कोई किसी भी ह्यूमन एक्शन पे या किसी बिहेवियर पे हमें कोई ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, एंड देयर इज़ डाउट इन्वॉल्व एंड देयर इज़ नेगेटिव एटीट्यूड इन्वॉल्व. तो यहाँ पर हम सिनिकल हो जाते हैं, राइट. सो दिस इज़ योर सिनिकल टोन. ओके, नेक्स्ट आई थिंक आपको ये बहुत समझ में आ रहा होगा, राइट. नेक्स्ट विल मूव towards another example. Let me simplify it for you. You see, it's a basic concept. I'm sure even someone like you can grasp it eventually. तो यहाँ पर हम देखें with words like even someone like you can grasp it eventually. तो यहाँ पर हम जो भी राइटर और जो स्पीकर है वो जिसको भी एड्रेस कर रहा है वो उसको नीचा दिखा रहा है, राइट. ही इज़ लुकिंग डाउन अपॉन समवन, राइट. तो ही इज़ belittling him or her, okay, and he or she is also considering himself or herself as superior. Yes, you can see, and treating the other person as inferior. तो यहाँ पर एक वो भले ही गैप दिखा रहा है कि सुपीरियर, इन्फीरियर, वट एवर, बट ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग दैट पर्सन. लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू. सो हेल्प करने की आड़ में वो नीचा दिखा रहा है, ओके. तो ये हमारी कौन सी टोन होगी? कॉन्डिसेंडिंग. ऑल राइट. तो कॉन्डिसेंडिंग टोन क्या होती है कि हम किसी की हेल्प करते हैं, राइट, बट उसकी आड़ में हम किसी को नीचा भी दिखाते हैं. हाँ, क्योंकि तुम इन्फीरियर हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है. आई होप ये आपको समझ आई हो. नेक्स्ट, the attorney provided advice without personal influence, guiding the client through legal options objectively. तो यहाँ पर आप कुछ कीवर्ड्स देख सकते हो, लाइक ऑब्जेक्टिवली, राइट. ये हमारा एडवर्ब है. सो यहाँ पे जो अटॉर्नी है वो विदाउट एनी पर्सनल इन्फ्लुएंस ऑब्जेक्टिवली क्लाइंट को गाइड कर रहा है. Yes, you can see here it's explicitly mentioned here, right. So in words के help से हमें क्या पता चलता है कि there is no personal biasness involved. Yes, and जो भी ऑब्जेक्ट या फिर एडवाइस या कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा रही है दैट इज़ बीइंग डन ऑब्जेक्टिवली. मतलब कुछ सब्जेक्टिविटी नहीं है, कोई फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है. येस, सो यहाँ पर हमारी जो टोन है दैट इज़ व्हाट? That is disinterested. So disinterested tone का क्या मतलब होता है कि हम एक there's a barrier, kind of a barrier कि हम अपने फीलिंग्स और इमोशंस को बीच में नहीं आने देंगे. तो द पीपल लाइक जो बैंकर्स और जो भी लॉयर्स एंड हियर वी हैव अटॉर्नी, ये सब हमें जब भी कोई एडवाइस देते हैं सो देयर इज़ नो सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व. ऑब्वियसली अगर आपका कोई फ्रेंड आपको एडवाइस देगा सो दैट विल बी डिफरेंट. उसमें उसके पर्सनल इमोशंस आपकी तरफ इन्वॉल्व होंगे, बट तो दैट पर्सन विल बी इंटरेस्टेड टुवर्ड्स यू. एंड हियर वी हैव डिसइंटरेस्टेड एडवाइस. ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन. The fire station burned down while the firefighters were on vacation. Okay, तो यहाँ पे there is humor involved, right? And imagine fire station who is responsible for सबके घर आग, सब कहीं भी अगर आग लगती है सो दे आर द फर्स्ट वंस फॉर आस्किंग फॉर हेल्प, कि उन्हीं को बुलाया जाता है कि प्लीज़ आओ और आग बुझाओ, राइट, लिटरली. यस, सो अगर फायर स्टेशन में ही आग लग गई सो दैट इज़ आई थिंक क्वाइट ह्यूमरस इन सिचुएशन. एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि देयर इज सम आयरनी इन्वॉल्व कि फायर स्टेशन में ही आग लग गई जब फायर फाइटर्स वेकेशन पे गए थे. ओके, देयर वाज अनदर, कोई हम एग्जांपल ले तो देयर वाज अ थेफ्ट इन अ पुलिस स्टेशन. सो पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो गई, राइट. सो ये काइंड ऑफ ह्यूमरस होते हैं, ठीक है. तो इनकी जो हमारी टोन होती है दैट इज़ आयरॉनिक. सो
जो भी लिखा हुआ है, द लिटरल मीनिंग एंड द इंटेंडेड मीनिंग कैन बी द ऑपोजिट, ठीक है। तो ये समझ में आया। सो देयर विल बी ह्यूमर इन्वॉल्व एंड विट इन्वॉल्व हेयर, विट भी इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस आर आयरॉनिक, ठीक है। ओके ओके, नाउ विल डू अ पैसेज, ठीक है। छोटा सा पैसेज है आप लोगों के लिए, विल रीड इट, ठीक है, एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। ओके, बीइंग अ complete health food, tofu has a lot of antioxidant content and it keeps your body healthy and disease free. But did you think you would have to give up your favorite palak paneer if you quit paneer? No, you can replace it with tofu. If that hasn't convinced you to take up tofu in your diet, we have got something else coming your way. Regular tofu consumption also prevents various types of cancer. Now it can't get any better than this. If you have designed your very own tofu recipe, don't forget to share it with us. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो राइटर है, ही इज़ काइंड ऑफ कन्विंसिंग अस एंड ही इज़ प्रेजेंटिंग एन आर्ग्यूमेंट, राइट। अगर आप यहाँ देखो, वो कह रहे हैं कि टोफू में a lot of antioxidant content is there and it also keeps your body healthy and disease free. So अगर हमें but what did you think you would have to give up your favorite palak paneer if you quit paneer? No. तो अगर आपको मतलब पनीर छोड़ने के लिए बोला हुआ है, तो क्या आपको पालक पनीर छोड़ने की ज़रूरत है? नो, यू कैन रिप्लेस इट विथ टोफू, ठीक है। तो ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस अस, ठीक है। यहाँ से भी आप को देख सकते हो, इट्स एक्सप्लिसिटली मेंशन हियर, यस। एंड ऑल्सो ही इज टेलिंग अस, गिविंग अदर बेनिफिट्स ऑल्सो, कि दे हेल्प्स टू प्रोवाइड प्रिवेंट वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर। ओके, सो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब उसने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे दी एंड ही परसुएड भी कर रहा है। तो क्या लगता है हमारी इसमें से कौन सी टोन होगी? फैक्चुअल होगी, परसुएसिव होगी, ऑप्टिमिस्टिक होगी या कंडेमनिंग होगी? ओके, तो क्या ये फैक्चुअल है? इज़ ही प्रेजेंटिंग फैक्ट्स? ओके, दे थोड़े थोड़े भले ही फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हो, बट एंड रिजल्ट कुछ और है, राइट। हेयर यू आर मतलब नॉट जस्ट गेटिंग इन्फॉर्मेशन, इसका एक लेवल और ऊपर हम जा रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव परसुएसिव। परसुएसिव मतलब परसुएट करना है, राइट। क्या आप इससे कन्विंस हो रहे हो, परसुएट हो रहे हो? या फिर देन वी हैव ऑप्टिमिस्टिक, कि कोई पॉजिटिव बताया गया हो किसी सिचुएशन के बारे में, या कंडेमनिंग, राइट, कि कुछ नेगेटिव या क्रिटिकल एस्पेक्ट आपको बताया गया हो। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो वी आर बीइंग परसुएडेड दैट वी शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग टोफू। ओके, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। द राइटर हैज़ गिवन द आर्ग्यूमेंट विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, कि हम उसकी बात को मान जाएं। तो क्या आप कन्विंस हो पाए इन आर्ग्यूमेंट से? ऑफ कोर्स यू कैन, ठीक है। कि वाई? बिकॉज उसने आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स बता दिए। यहाँ पे बता दिया कि वो कैंसर प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, यहाँ पे बता दिया कि वो बॉडी हेल्दी रखता है, डिजीज़ फ्री रखता है। सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज परसुएसिव, यस। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, यस। ओके, सो आई थिंक अब तक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस, और हमने कुछ टोन्स भी डिस्कस करी, ठीक है। नाउ एक छोटा सा आपके लिए होमवर्क है, इस पैसेज को आप एक बारी पढ़ना, गो थ्रू करना, एंड इन 4 ऑप्शंस में से बताना विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, कमेंट्स में बताना कि इस पैसेज को देख के आपको क्या लगता है कि राइटर की टोन क्या है, ठीक है। सो विद आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो टोन्स के लिए प्लीज़ फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की वर्ड्स, एडजेक्टिव्स पढ़ना, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, इन सबको पढ़ना सीखो, राइट। बहुत प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपको टोन्स अच्छी होंगी, एंड वोकैबलरी भी, अगर if you amp up your vocabulary, so that obviously can give you an edge. Okay, so with this I'm signing off. I hope you were able to understand the topic well. Thank you.